Hello students. So students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, constructions. Okay student, this is the last chapter of your class 10th mathematics syllabus. So first we should know what we have to study in this chapter. Okay, so see, the first part we have to study, that is division of a line segment. Division of a line segment in given ratio. Division of a line segment in given ratio internally and the second thing we have to study, tangents to the circle drawn from the point outside it. Okay, outside it. So basically these two things we have to study in this chapter. First thing is that division of a line segment in the given ratio internally, and tangents to the circle drawn from the point outside it. Students, you all know that this year the syllabus of mathematics has been reduced up to 70%. Okay, so earlier there was one more topic in this chapter, that was construction of a similar triangle. Okay, construction of a similar triangle to the given triangle. So that part is removed as per the new syllabus. So now we have to study only two topics. The first topic is that division of a line segment in the given ratio internally, and the second thing is that tangents to the circle drawn from the point outside it. Okay, so let's start the first topic of this chapter, that is division of a line segment in the given ratio. Okay, the first topic is that division of a line segment. Division of a line segment means you have to divide a line segment. Okay, so how will you divide? Okay, so there are some methods to divide a line segment in the given ratio. So our topic is that to divide a line segment in the given ratio. In the given ratio means ratio will be given and the line segment will be given. So you have to divide that line segment in the given ratio. Okay, so this is the first construction part of this chapter. So we will start from one question. Okay, so let's solve. Suppose student, question is that divide a line segment of 6 centimeter in the ratio 3:2. Okay, internally. Suppose question is that student, we have to divide a line segment of 6 centimeter. Line segment, the length of the line segment can be anything. Okay, so in this question the length of the line segment is 6 centimeter and we have to divide this line segment in 3:2. Okay, internally. So how we will approach it, student? So we will do the construction. Step of construction you can write by yourself. Okay, so what you will do? First, I am telling you the first method. Okay, suppose I am telling you the first method. There are two methods, so I am going to tell you first method. So first method is that first you draw the line segment of 6 centimeters. So suppose I have drawn a line segment of 6 centimeters like this.
and suppose it is A and B. Okay, suppose I have drawn a line segment AB and its length is 6 centimeter. Okay, so it is of 6 centimeter. Now there are two end points, that is A and B. So from any end point you can make an acute angle downside. From any end point means from either from A or either from B, you can draw a acute angle downside. Okay, so suppose from A I am drawing an acute angle downside, so I can draw like this now. I can draw like this because A से मुझे acute angle draw करना है. आप किसी भी पॉइंट से acute angle draw कर सकते हो नीचे की तरफ. So क्या किया मैंने, just I have drawn a line that is, suppose it is AX. Suppose it is AX. Okay, and you can see now angle XAB is acute angle. By seeing it, we can say that it is an acute angle. So what we have to do? First, we have to draw the line segment, whatever length is given. Then either from A or from B, we will draw an acute angle downside. So acute angle, for drawing an acute angle, just draw a line in the downside from A. So suppose angle BAX will be acute angle. Okay. Now student, see in which ratio we have to divide 6 centimeter? In 3:2. So the ratio is what, student? Ratio is 3:2. So what you do? You add them. So 3 and 2. When you will add them, you will get 3 plus 2, that is 5. So it means that we get 5. Okay? So whatever line you have drawn downside means you have drawn AX downside. So what you do? You divide this AX in 5 equal parts. Why 5 equal parts? Because ratio was 3 and 2. So when you will add them, how much you will get? You will get 5. So whatever line you have drawn from A to the downside, you have to divide this line in 5 equal parts. और आप कैसे डिवाइड करोगे? आपने A से एक लाइन नीचे की तरफ की थी ना, that is AX. तो आपको AX को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. So what you will do? From compass, you will take any measurement. From compass, you will take any measurement. Suppose your compass is like this, because I am not having it. Suppose your compass is like that, and it is suppose pencil. So suppose when you will take the compass, it will have some arc length. So you can take any arc length. Okay, and from A you will cut it on AX. Okay, so suppose I am keeping my compass on A and I am cutting AX at here. Okay, I am cutting here. Suppose it is A1. Okay, so that same arc we have to cut from A1. Okay, because we have to cut in 5 equal parts. We have to cut it in 5 equal parts. So you take a compass, take A as a center, and cut one mark on AX, that is AA1. So you will get AA1 now. So that same arc you will cut from point A1. जितना ही आपने यहां कट किया है, सेम आर्क आपको A1 से कट करना है. तो जब कट करोगे तो ये हो जाएगा A2, अगेन देन A3, देन अगेन A4 एंड देन A5. तो इस AX को हमने 5 इक्वल पार्ट में क्या कर लिया? कट कर दिया, डिवाइड कर दिया. मतलब 5 ही पार्ट में क्यों किया? बिकॉज रेशियो वॉज 3:2 एंड जब 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा. अब आपको कंपास लेना है. कंपास से कोई भी आर्क ले लो. ठीक है, कंपास से कोई भी आर्क ले लो और A को सेंटर मान के AX पे कट कर दो. ठीक है, जितना आप आर्क आपने A से कट किया था उतना ही आर्क आप A1 से कट करो, फिर उतना ही आर्क आप A2 से कट करो. ऐसे ही आपको 5 बार कट करना पड़ेगा. 5 बार कट करोगे तभी तो 5 पार्ट मिलेगा. और इस केस में स्टूडेंट क्या होगा? इस केस में क्या होगा? जो लेंथ A1 की होगी वही लेंथ A1 A2 की होगी, वही लेंथ A2 A3 की होगी, वही लेंथ A4 A5 की होगी, A3 A4 की होगी, एंड वही लेंथ A4 A5 की होगी. मतलब कि ये सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि आपने एक आर्क लिया था और वही आर्क आपने A से कट किया, देन सेम आर्क आपने A1 से कट किया, फिर A2 से कट किया, फिर A3 से A4 से. जब A4 से कट करोगे तो 5वां आर्क यहां पर आएगा, तो टोटल 5 आर्क आपको मिल जाएंगे. तो जिससे ये AX 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करना है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू? जो भी लास्ट आर्क है, मतलब कि जो A5 है, 1 2 3 4 5 हुआ ना, तो जो भी 5वां है, क्यों 5वें से ही करते हैं? क्योंकि टोटल हमारा 5 आया है,
तो जो जहां पर भी हमारा लास्ट वाला आर्क होगा दैट इज A5, उसको आप B से ज्वाइन कर दो, सो दैट विल बी ज्वाइंड बाई B। सपोज I have joined this B to A5, okay? I have joined this B to A5, ठीक है, क्योंकि 5 पार्ट थे तो मैंने लास्ट वाले को किससे ज्वाइन कर दिया, B से, ठीक है। अब मेन थिंग आता है स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी है। पहले क्या करना था, जो भी लाइन सेगमेंट दिया है उतने लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, उसके बाद A या B से नीचे की तरफ कोई एक्यूट एंगल बना लो, तो मैंने A से एक एक्यूट एंगल बना लिया दैट इज AX। अब हमने रेशियो को देखा दैट इज रेशियो वॉज 3:2, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो हम क्या किया, 3 + 2 = 5, तो AX को हमको 5 पार्ट में डिवाइड करना था, तो मैंने एक आर्क ले लिया कंपास का कोई भी साइज का और A को सेंटर मान के कट किया, तो A1 पे कट हुआ। अब A1 से भी सेम आर्क कट करना है जितना हमने A से लिया था, तो A1 को सेंटर मान के कट करोगे तो A2 मिलेगा, A2 से सेंटर मान के कट करोगे तो A3, A4 एंड A5, जिससे ये A5, जिससे ये AX 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 5वें पार्ट से आप लास्ट B को ज्वाइन कर दो, so you will get BA5, you will get BA5। अब करना क्या है, हमको AB को 3:2 में डिवाइड करना है ना। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन सेगमेंट है AB एंड दिस इज पॉइंट P, सो दिस पार्ट विल बी 3 एंड दिस पार्ट विल बी 2। यही का मतलब हुआ। आपको जब बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अगर कोई लाइन AB है जिस पर एक पॉइंट P है जिसको वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो पहला AP होगा 3 और PB होगा 2। इसका मतलब हमें AB को ऐसा कुछ डिवाइड करना है कि यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 2 आए। तो अच्छा, अब ध्यान दो, 3:2 में पहला वाला क्या है, 3 ना, पहला वाला क्या है 3। तो हमको अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें देखना है कि यहां पर थर्ड वाला पार्ट कहां मिलेगा इस AX पे। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, क्योंकि पहला रेशियो 3 है ना, तो हम A3 लेंगे। अगर यही क्वेश्चन 2:3 होता, सपोज 2:3 होता, तो पहला पार्ट 2 होता तो हम 2 लेते। अगर 4:3 होता, 4:1 होता तो हम लेते 4। अगर 1:4 होता तो हम लेते 1। मतलब कि जो पहले रेशियो लिखा होता है वही वाला पार्ट लेते हैं, दैट इज 3 इज द फर्स्ट, 2 इज द सेकेंड, सो फॉर दैट वी विल टेक A3, ओके। अब क्या करना है, जो भी एंगल A5 पे बना हुआ है, जो भी एंगल A5 पे बना हुआ है, सेम एंगल हमें A3 से बनाना है, ठीक है। जो भी एंगल A5 पे बना हुआ है, सेम एंगल मुझे बनाना है A3 से। तो करेंगे क्या, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों A3 से ही करेंगे, क्योंकि पहला हमारा क्या है 3। अगर यही 2:3 होता तो हम लोग पहला पार्ट, पहला वाला रेशियो, जैसे कि अगर यही 2:3 होता तो हम लोग यहां से मत करते ड्रॉ। अगर यही चीज 4:1 होता तो यहां से करते ड्रॉ, सॉरी यहां से करते A4 से, ठीक है। तो पहला पार्ट, जैसे कि रेशियो जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग AB को 3:2 में, तो पहला हमारा पार्ट ये 3 और ये 2 है, तो हम लोग 3 वाले को देखेंगे, ठीक है। 3 वाला मतलब कि A3 कहां पर है, A3 यहां पर है। तो अब क्या करना है, जो एंगल A5 पे बना है, जो भी एंगल A5 पे बना है उसको मेजर करना है और सेम एंगल हमें A3 से बनाना है, ठीक है। जो एंगल A5 पे बना है वही एंगल मुझे A3 पे बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये वाला एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, दिस एंगल कैन बी एनीथिंग, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री। तो अगर 60 है, 70 है, 80 है, 60 है, 30 है, तब तो बना ही लोगे। लेकिन मान लो 50 है, 40 डिग्री है, तब कैसे बनाओगे कंपास से। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, कैसे बनाएंगे। आप क्या करो, A5 पे अपना कंपास रखो और वहां से एक आर्क लो, ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहां से A5 पर एक आर्क, A5 पे कंपास रखो और एक आर्क ड्रॉ कर दो, और सेम आर्क आप A3 से ड्रॉ करो सेंटर मान के, ठीक है। तो मैंने A5 पे कंपास रखा और एक आर्क मारा, सेम चीज मैंने A3 पे कंपास रखा और यहां पे एक आर्क मारा, ठीक है। अब देखो, चूंकि हमको जो एंगल यहां बना है, A5 पे जो एंगल बना है वही एंगल A3 पे बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, जब आपने ये आर्क ड्रॉ किया था स्टूडेंट, तो ये वाला आर्क इस AX को यहां पे कट किया था, ठीक है। अब क्या करो, कंपास को यहां रखो और पेंसिल को यहां रखो और देखो कितना लेंथ है, ठीक है। जब आप आर्क ड्रॉ करोगे तो ये आर्क AX को यहां कट करेगा, तो आपको ये वाला एंगल मेजर करना है कितना है। तो कंपास से मेजर करोगे तो क्या करोगे आप, कंपास को यहां और पेंसिल को यहां, जितना भी वो मेजरमेंट होगा सेम चीज आप इस वाले आर्क जो कट किया था AX को वहां से ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है।
तो यहां कट करेगा और इसी को आप इससे ज्वाइन कर दोगे, वेट अ मिनट, आई विल टेल यू अगेन, ठीक है। देखो करना क्या है स्टूडेंट, हमने यहां तक तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया था, यहां तक, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया था। अब करना क्या है स्टूडेंट, हम लोग करना क्या है कि हमको A3 पर वही एंगल बनाना है जो A5 पे है, ठीक है। A3 पर वही एंगल बनाना है जो A5 पे है। अब बनेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि A5 को सेंटर मान के एक आर्क खींचेंगे ऐसे ही कंपास की मदद से। तो मान लो हमने आर्क ऐसे खींचा, ठीक है, और सेम आर्क आप कहां से खींचोगे, A3 को सेंटर मान के, क्योंकि A3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला वाला रेशियो 3 है, ठीक है, तो A3 से करेंगे। तो सेम आर्क हम लोग यहां से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, जो आर्क हमने यहां से कट किया होगा वही आर्क हम लोग A3 को सेंटर मान के यहां कर देंगे। अब ध्यान दो, जब A5 से आर्क कट किए थे और A3 से आर्क कट किए थे तो दोनों आर्क AX को अलग अलग पॉइंट पर कट किया था, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये वाला एंगल को मेजर करना है कितना है। तो इसको क्या करोगे, आप कंपास को यहां रखोगे और पेंसिल को यहां रखोगे, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस आएगा, वही डिस्टेंस आप यहां से इस पे कंपास का शार्प पॉइंट रख के ऐसे कट कर दोगे तो यहां कट करेगा, और इसी को जब आप इससे ज्वाइन कर दोगे तो यहां ये वाली लाइन इस AB को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगी। तो मान लो वो पॉइंट क्या है, P, और जो पॉइंट P होगा वो क्या हो जाएगा हमारा AB पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB 3:2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब ये होगा कैसे, क्यों क्यों ऐसा करने से ये डिवाइड हो गया तो एक बात बताओ मुझे, देखो ध्यान से, AX था, अच्छा ये बताओ A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 एंड A4 A5 ये सारे आपस में इक्वल थे ना, मतलब कि ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तभी तो 5 इक्वल पार्ट में किए थे हम लोग। इसका मतलब जो वैल्यू A1 की है वही वैल्यू A1 A2 की है, वही वैल्यू A2 A3 की है, A3 A4 की है और A4 A5 की है। इसका मतलब यहां से यहां तक देखें हम लोग तो यहां से 3 पार्ट हुआ और यहां से यहां तक 2 पार्ट हुआ। इसका ये मतलब है ना कि A1 और A1 डिवाइड बाई A3, A से लेकर A3 और A3 से लेकर A5 कितना है, 3/2 है ना, क्योंकि ये यहां से यहां तक तीन इक्वल पार्ट है और यहां से यहां तक 2 इक्वल पार्ट है, तो ये A3 और A3 A5 3/2 हुआ। अच्छा अब देखो हम लोग ये वाला एंगल हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है ना, तो अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, जैसे कि देखो PA3 विल बी पैरेलल टू BA5, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तभी तो ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तब होंगे जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, और पैरेलल बनाने के लिए ही हम लोगों ने इसका एंगल और इसका एंगल इक्वल किया है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि PA3 विल बी पैरेलल टू PA3 विल बी पैरेलल टू BA5, तो अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABA5 is a triangle and PA3 is parallel to BA5। तो अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जो कि अदर दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंट कट करती है, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम कहता है कि A3 अपॉन A3 A5 इज इक्वल टू AP अपॉन PB, और ज्योमेट्री से A3 और A3 A5 3:2 है, तो इसीलिए AP/PB भी कितना होगा, 3:2। समझ में आया, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है ये, ठीक है, इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। हमने किया क्या स्टूडेंट, हमने क्या किया,
क्यों ये 3:2 ही आया? 3:2 इसलिए आया क्योंकि जहां A5 पे जो एंगल बना था वही एंगल हमने यहां बनाया A3 पर, और ये दोनों एंगल सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि PA3 विल बी पैरेलल टू BA5 करस्पॉन्डिंग एंगल से। और अगर पैरेलल है तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा है। व्हाट इज द थेल्स थ्योरम? कि किसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि अदर टू साइड्स को, किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करें जो कि एक साइड के पैरेलल हो और अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, कट करे, तो दोनों अलग अलग साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाई थेल्स थ्योरम। तो सेम प्रॉपर्टी यहां भी लगा रहे हैं। इन ट्रायंगल ABA5 PA3 is parallel to BA5 and this line intersect the other two side in the different point, so that two side will divide in the same ratio. It means AA3 by A5 is equal to AP upon PB, and because AA3 and A3 upon A5 is 3/2, so AP upon PB is also 3/2. Okay, so ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये जो मैंने बताया है आपको ये चीज, दिस इज द जस्टिफिकेशन कि कैसे आया। अदरवाइज अगर जस्टिफिकेशन पूछता है तभी लिखो, ऐसे जस्टिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ड्रॉ कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। देखो फिर से मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूं। देखो मैं फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है, एक बार और, जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले इसका रफ डायग्राम बना लो। रफ डायग्राम क्या है कि मान लो एक AB लाइन सेगमेंट है और P एक पॉइंट है जो कि 3:2 में डिवाइड होना है। ठीक है, मतलब कि AB लाइन सेगमेंट को हमको 3:2 में डिवाइड करना है। ठीक है, हमको यही डायग्राम को डिवाइड करना। आप कैसे करेंगे? तो आप पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ AB, और सपोज ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, सो इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि A या B से नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल बनाने के लिए आप बस क्या करो, स्केल से A से चाहे A से या B से, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप A से बनाइए। तो A से आप नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो। तो सपोज हम लोगों ने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ठीक है, और सपोज इट इज AX। अब क्या करना है? देखो रेशियो क्या दिया हुआ है, तो रेशियो इज 3:2। तो इन दोनों को ऐड करो, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू डिवाइड दिस AX इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स दैट वी हैव टू डिवाइड दिस AX इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। और कैसे डिवाइड करोगे? एक कंपास ले लो और कोई आर्क का लेंथ ले लो, और ए से सेंटर मान के एक आर्क इस पे कट कर दो, AX पे। ठीक है, तो इसका जो आपने A से कट किया था उसी लेंथ का आप A1 से कट करोगे, यहां आएगा तो इट विल बी A2। अगेन एक और कट करोगे तो A3, A4 एंड सपोज इट इज A5। ठीक है, अब चूंकि 3 + 2 5 आया था, तो जो भी हमारा 5 वाला होगा उससे आप B को ज्वाइन कर दोगे। तो सपोज इट इज आई हैव ज्वाइन टू A5। ठीक है, नाउ अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है, A5 पे जो भी एंगल बना है वो मुझे A3 से बनाना है। क्यों A3 से बनाना है? क्योंकि हमारा पहला रेशियो का पहला पार्ट जो था वो 3 था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे। और मेजर कैसे करेंगे? कंपास से, प्रोटेक्टर से नहीं, कंपास से। ठीक है, तो कंपास से करने के लिए क्या करोगे, आप A5 को सेंटर मान के किसी भी लेंथ का A5 को सेंटर मान के किसी भी लेंथ का एक आर्क ऐसे कट कर दो। ठीक है, तो ये आर्क AX को कहीं ना कहीं कट करेगा। अब उसी लेंथ का आर्क आप A3 को सेंटर मान के कट करो तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, हो गया ये चीज। अब क्या करना है, बेसिकली हमको जो एंगल यहां बना हुआ है वही एंगल A3 पे बनाना है। तो एक आर्क तो हमने दोनों से ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, जब A5 को सेंटर मान के इस पे कट किए थे एक आर्क, तो ये AX को यहां कट किया था। आप क्या करो, कंपास को यहां रखो और पेंसिल से इतना जितना भी इस आर्क का लेंथ है वो मेजर कर दो। ठीक है, कंपास को यहां रखना है। कहां पर रखना है? जहां पे ये आर्क AX को कट किया है, यहां पे कंपास को रखो और पेंसिल को यहां रखो और देखो कितना है ये। ठीक है, और वही चीज ये वाला आर्क जहां कट कर रहा है X को, वहां पर रख के इसको ऐसे क्या कर दो, कट। जितना आपने यहां पे मेजर किया था वही लेंथ का आर्क
ये वाले आर्क जो एक्स पे कट किया था, ए एक्स पे, वहां पर कंपास को रख के कट कर दो और इसको आप क्या कर दो, इससे ज्वाइन। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, और अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो सपोज ये वाला लेंथ इसको पी पे कट कर रहा है तो ये 3:2 में पड़ जाएगा, यानी कि एपी कितना हो जाएगा 3 एंड पीबी हो जाएगा 2। अब इसका जस्टिफिकेशन कोई पूछे, कोई इसका जस्टिफिकेशन पूछे आपसे, अगर जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करोगे, हमने अभी मेजर किया था ना कि यहां से यहां तक 3 इक्वल पार्ट है और यहां से यहां तक 2 इक्वल पार्ट है। इसका मतलब जब आप मेजर करोगे तो A3 डिवाइड बाई A3 A5 कितना आएगा, 3/2 आएगा। और बिकॉज एंगल A3P इज इक्वल टू एंगल A5B, A3P is equal to A5B, and these two angles will be equal by corresponding angles, so we can say that PA3 will be parallel to BA5, PA3 will be parallel to BA5, और अगर ये पैरेलल है so in triangle AA5B by Thales theorem, Thales theorem क्या कहता है, when a line is parallel to any one side of a triangle intersect the other two sides in the same ratio, when a line is drawn parallel to one side of the triangle and that line intersect the other two sides at different point, so these two sides will divide in the same ratio। जैसे एक ट्रायंगल है A5B जिसमें से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि एक साइड के पैरेलल है और ये वाली लाइन अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये लाइन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम लिख सकते हैं A3 विल बी इक्वल डिवाइड बाई A3 A5 is equal to AP by PB, और because A3 by A3 A5 is 3/2, so hence AP upon PB will also 3/2। okay, so इस तरह करना है। so this is the first method, okay, so please note down it। Now student, the second method of same topic, that is divide a line segment of 6 cm in the ratio 3:2 internally। ठीक है, अब देखो लाइन सेगमेंट की लेंथ कुछ भी हो सकती है और ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो मेथड सेम रहेगा। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड थोड़ा इजी है, इसके लिए भी सेम चीज करना है। आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, पहले लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन AB भी विल ड्रॉ of 6 cm। तो suppose this is the line AB, A and B। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप क्या करो स्टूडेंट, या तो A से आप क्या करो, A से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, हमको मतलब A और B से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपस में क्या हो, पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, पहले A से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे आप, सपोज मैंने A से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया, तो सपोज मैं यहां से 60 डिग्री ड्रॉ करूंगा, तो 60 डिग्री आप जानते हो कैसे बनता है, लाइक दिस। ठीक है, और सेम एंगल आप B से ड्रॉ करो नीचे की तरफ। ठीक है, सेम एंगल आप B से ड्रॉ करो नीचे की तरफ। ठीक है, A और B से हमको दो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आपस में क्या हो, पैरेलल, और एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। तो A से मैंने एक एंगल बनाया दैट इज 60 डिग्री, ऊपर जाएगा, और B से भी मैं 60 डिग्री बनाऊंगा लेकिन नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ बनाओगे तो ऐसे और ऐसे आएगा, बिकॉज आई हैव नॉट कंपास, सो लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल। जो एंगल आप यहां बनाओ वही एंगल आप B पे बनाओ, लेकिन नीचे की तरफ। अगर आप A पे नीचे की तरफ बना रहे हो तो B पे आप ऊपर की तरफ बनाओगे। अब देखो, चूंकि ये एंगल 60 और ये एंगल 60 है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल। ठीक है, तो सपोज इट इज AX एंड इट इज BY। ठीक है, इट इज AX, इट इज BY। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, याद रहने दो, लीव इट।
तो हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी 6 सेंटीमीटर का, इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ए और बी से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया जिससे ए से जो लाइन पास करे और बी से जो लाइन पास करे वो आपस में क्या हो, पैरेलल। तो मैंने ए से 60 डिग्री बनाया, ये एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल भी 60 है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एंगल 60 है तभी तो ए एक्स और वाई बी पैरेलल होगा। ए एक्स विल बी पैरेलल टू वाई बी, वाई AX will be parallel to YB क्योंकि एंगल XAB is equal to एंगल YBA, क्योंकि ये एंगल 60 और ये एंगल 60 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो इसका मतलब AX will be parallel to YB। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो पहला रेशियो 3 है और दूसरा रेशियो 2 है ना, तो आप क्या करो, AX को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और BY को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे हमने पिछले केस में किया था। तो इसको AX को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि पहला रेशियो 3 है। तो आप कंपास ले लो और कंपास पे कोई भी आर्क का, कोई भी मेजरमेंट का आर्क ले लो, ठीक है। अब क्या करो, कंपास लो, कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क ले लो और ए को सेंटर मान के यहां कट कर दो। तो पहला आर्क यानी कि पहला पार्ट ये हो गया, सपोज इट इज A1। फिर A1 से भी सेम लेंथ का एक आर्क खींचो, तो यहां पे आ जाएगा A2, और फिर A2 से भी सेम लेंथ का A3, ठीक है। मतलब कि देखो क्या किया, पहला रेशियो 3 है ना, तो AX जो लाइन हमें मिला था रे, AX जो हमें रे मिला था, उसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया कंपास की मदद से। कंपास से आप किसी भी मेजरमेंट का आर्क लो और ए को सेंटर मार के कट करो, तो एक पॉइंट पे कट करेगा, सपोज इट इज A1। अब A1 से ही सेम लेंथ का आर्क खींचो जो खींचा था आपने ए से, तो A2, फिर A2 से भी सेम A3, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड करना था तो 3 पार्ट में ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज A1, A1 A2 एंड A2 A3। इट मींस दैट A1, A1 A2 एंड A2 A3 आर इक्वल। और जो आपने स्टूडेंट्स, जो आपने आर की लेंथ यहां पे कट की थी ए से, वही आर की लेंथ आप बी से इस रे पे कट करो, ठीक है। अच्छा, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला रेशियो क्या है 2। पहली वाली रे को 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में, और दूसरी वाली रे को 2 इक्वल पार्ट में। तो बी को सेंटर माने कट करोगे, तो सपोज यहां पे कट किया, दैट इज B1, और B1 पे सेम कट करोगे तो B2। अब ध्यान देना, ये जितने भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, ये जितना भी हम लोगों ने आर कट किया है दोनों रेस पे, AX और BY पे, वो सारे लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब कि ये सब आपस में क्या है, इक्वल। पहले वाले रे को हम लोगों ने 3 पार्ट में और दूसरे वाले रे को हमने 2 पार्ट में किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि रेशियो 3 रेशियो 2 था। अगर मान लो रेशियो 2 रेशियो 3 होता तो आप AX को 2 इक्वल पार्ट में और BY को 3 इक्वल पार्ट में, तो मतलब यहां पे केवल A2 तक कट करते और यहां पे आप B3 तक कट करते, ठीक है। तो हमने क्या किया कि AX को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और BY को 2 इक्वल पार्ट में, क्योंकि हमें 3 रेशियो 2 में डिवाइड करना था, ठीक है। मतलब कि पहले रे को 3 इक्वल पार्ट्स में, दूसरी रे को 2 इक्वल पार्ट्स में। और कैसे किया, अपने कंपास से कोई भी मेजरमेंट का, कंपास आप लगा यूज करते हो तो उसमें पेंसिल लगी होती है, आप उससे मेजर करना कोई आर्क, ए को सेंटर मान के एक कट करोगे तो A1 मान लेना, इसको जहां भी कट करेगा। फिर A1 से सेम मेजरमेंट का कट करोगे तो A2 आ जाएगा, और A2 से सेम मेजरमेंट कट करोगे तो A3 आ जाएगा। अब उसी मेजरमेंट का आप B से कट करोगे BY पर, तो B1 और B2, तो ये 3 पार्ट में और ये 2 पार्ट में, ठीक है। अब देखो हमें 3 रेशियो 2 में डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो इसका मतलब 3 और 2, मतलब कि A में हमको A3 तक जाना है और B में हमको B2 तक जाना है, तो आप A3 और B2 को क्या कर दो, ज्वाइन, ठीक है। A3 और B2 को क्या कर दो, ज्वाइन। और ये A3 B2 को जब ज्वाइन किए होगे तो AB को कहीं ना कहीं कट किया होगा ना, तो मान लो ये पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पर AB किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 3 रेशियो 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मच इजियर देन द प्रीवियस मेथड, दिस मेथड इज मच इजियर देन द प्रीवियस मेथड, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी और 6 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ए और बी से एक एक्यूट एंगल बनाना है,
तो आप एक्यूट एंगल बनाओगे तो, और सेम लेंथ का एक्यूट एंगल बनाना है, और ऐसे बनाना है कि ए पे जो रे हो और बी पे जो रे हो आपस में क्या हो, पैरेलल। तो हम लोगों ने क्या किया, ए से 60 डिग्री बनाया ऊपर की तरफ और बी से 60 डिग्री बनाया नीचे की तरफ। केवल 60 नहीं, आप कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना ए पे जो एंगल बनाओगे वही एंगल बी पे नीचे की तरफ बनाओगे, तभी लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमने 60 डिग्री ऊपर बना लिया ए की तरफ और बी में नीचे की तरफ 60 डिग्री बना लिया, जिससे AX और YB पैरेलल हो गए। अब हम AX को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और BY को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। क्यों 3 और 2 में किए, कि पहला वाला 3 और दूसरा वाला 2 है, तो पहली रे को आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे और दूसरी रे को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। That is A1, A2, A3 and B1, B2. And one more thing, these all parts are equal to each other. Means A1, A1, A2, A2, A3, B, B1 and B1, B2 all are same. ठीक है, और are in equal length. अब चूंकि हमें 3:2 चाहिए था, तो A में 3 वाला और B में 2 वाले को आपस में ज्वाइन कर दो, तो A3 B2 ज्वाइन करोगे। जब ज्वाइन करोगे तो ये AB को कहीं ना कहीं कट करेगा, सपोज दैट इज द पॉइंट P, और इसी पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट 3:2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, फिर से मैं इसको बना के बता दे रहा हूं, देख लीजिए। जैसे मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया AB, एक लाइन सेगमेंट बनाया AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब A पे मुझे एक एक्यूट एंगल बनाना है, तो मैंने सपोज 60 डिग्री बना दिया, तो मैंने 60 डिग्री बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और B पे भी 60 डिग्री बनाऊंगा। जो आप A पे एंगल बनाना वही एंगल B पे बनाना, लेकिन नीचे की तरफ। ठीक है, अगर A पे ऊपर बना रहे हो तो B पे नीचे, और अगर A पे नीचे बना रहे हो तो B पे ऊपर, क्योंकि ऊपर बनाओगे दोनों में, अगर दोनों में सेम ऊपर ही बनाओगे तो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पैरेलल लाइन बनानी है A और B से, और सेम एंगल बनाना है। तो A पे मैंने एक्यूट एंगल बना दिया, दैट इज सपोज इट इज AX एंड इट इज ऑफ 60 डिग्री, और B पे भी सेम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री लाइक दिस, तो सपोज दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड दिस सपोज इफ दिस इज 60, तो ये भी 60। तो A और B पे हमने दो एंगल सेम एंगल बनाया, एक्यूट एंगल, दैट इज 60 एंड 60। तो अगर सेम एंगल है तो दैट इज AX एंड दिस इज BY विल बी पैरेलल। तो यहां से क्या हो जाएगा, AX विल बी पैरेलल टू YB। AX पैरेलल होगा YB के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब चूंकि पहला रेशियो 3 और दूसरा रेशियो 2 है, तो पहली वाली रे को 3 इक्वल पार्ट में और दूसरी वाली रे को 2 इक्वल पार्ट में, तो आप A को सेंटर मान के AX को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो A को सेंटर मान के कट करोगे तो यहां मान लो आया, सपोज इट इज A1, फिर यहां से ही सेम लेंथ का आर्क कट करोगे तो A2, एंड सपोज यहां से भी सेम लेंथ का आर्क कट करोगे तो A3, एंड उसके बाद B से भी उसी लेंथ का कट करना है जितना आपने इस पे किया है, तो सपोज इट इज B1 एंड इट इज B2। अब चूंकि 3:2 में डिवाइड करना है, और एक चीज और देखना, जो मैंने यहां लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू B1 इक्वल टू B1 B2। ये सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब कि AS को जिस भी लेंथ से आप डिवाइड कर रहे होगे, जो भी आर्क की लेंथ यूज कर रहे होगे, वही सेम आर्क आपको B को सेंटर मान के कट करना है तो B1 आएगा, और B1 से भी सेम लेंथ का कट करोगे तो B2 आएगा। अब चूंकि रेशियो 3:2 है, तो A में आप 3 को देखोगे और B में आप 2 को देखोगे, और 3 इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दोगे। तो जब ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे ही ज्वाइन करोगे वैसे ही AB को किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगा, और इसी पॉइंट पे ये AB 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस पार्ट विल बी 3 एंड दिस पार्ट विल बी 2। ठीक है, ये मेथड है। मान लो ये 4:3 होता, तो सपोज ये 4:3 होता, तो क्या करते, मान लो ये 4:3 होता, तो अगेन सेम थिंग करते हम लोग। क्या करते, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते AB, A पे 60 डिग्री बना देते हैं, मान लो तो 60 डिग्री ऐसे बनता, और B में भी 60 डिग्री बनाते ऐसे बनता। ठीक है, ये भी सेम लेंथ का है, ये भी 60 और ये भी 60 है। सपोज ये भी 60 है और ये भी 60 है, और 60 आपको बनाने आता है तो आप बना लेना कंपास से। ठीक है, सपोज ये हमारा AX है, तो ये हमारा BY है। अब चूंकि रेशियो 4 और ये 3 है, तो पहले वाले रे को 4 इक्वल पार्ट में, दूसरे वाले रे को 3 इक्वल पार्ट में,
और एक चीज और, यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं AX विल बी पैरेलल टू YB, ठीक है। दोनों पैरेलल हो, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी AX विल बी इक्वल टू YB, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। अब AX को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि पहला वाला रेशियो 4 है, तो A को सेंटर मान के एक आर्क कट करोगे तो A1, फिर A1 को भी सेंटर मान के सेम लेंथ का आर्क कट करोगे तो A2, देन A3 एंड देन A4, और सेम लेंथ का ये आर्क आप B को सेंटर मान के कट करोगे तो सपोज B1, B2, B3, ठीक है, सेम लेंथ का। अब चूंकि रेशियो 4 और 3 है तो पहले वाली रे में चौथा वाला और दूसरी वाली रे में तीसरा वाला, दूसरी वाली रे में तीसरे वाले को आपस में ज्वाइन कर दोगे, क्योंकि रेशियो 4 रेशियो 3 है, तो पहली वाली रे में A4 लेंगे और दूसरी वाली रे में B3 लेंगे, और इन दोनों को जब ज्वाइन कर दोगे तो ये AB को कहीं ना कहीं कट करेगा, सो दिस पॉइंट विल बी P, सो दैट AP विल बी 4, दिस AP विल बी 4 एंड दिस PB विल बी 3, तो हो जाएगा डिवाइड, दैट इज AP रेशियो PB विल बी 4 रेशियो 3। तो इस तरह से आप एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ज्यादा सिंपल है, बस एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, A पे एक्यूट एंगल बनाओ ऊपर की तरफ और B पे एक्यूट एंगल बनाओ नीचे की तरफ, और दोनों एंगल जो बना रहे हो आप A और B से, वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो सबसे इजी 60 डिग्री बनाना होता है, तो A से आप 60 डिग्री ऊपर की तरफ बना दो और B से 60 डिग्री नीचे की तरफ बना दो, ठीक है। तो सपोज दिस विल बी AX, दिस विल बी BY। अब चूंकि रेशियो 4 और 3 है तो आप AX को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो कंपास लो, A को सेंटर मान के एक आर्क कट करो, तो सपोज कहीं ना कहीं कट करेगा, तो इट इज A1। अब A1 को अगेन सेंटर मान के सेम लेंथ का आर्क कट करोगे तो A2, देन A3, देन A4, 4 पार्ट हो गए। वही लेंथ का आर्क आप B को सेंटर मान के कट करोगे BY पर, तो आपका आएगा B1, फिर B1 को सेंटर मान के कट करोगे तो B2, फिर B2 को सेंटर मान के कट करोगे तो B3। अब चूंकि रेशियो 4 और 3 है तो A वाले में 4 को लोगे और B वाले में 3 को लोगे, तो 4 और 3 को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो AB को कहीं ना कहीं कट करेगा, so suppose this point is P, so यही पॉइंट AB को 4:3 में डिवाइड करेगा, ठीक है। So by this way student we learned how to divide a line segment in the given ratio internally. So आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बस एक टॉपिक बचा है, that is tangents drawn to a circle from the external point. This thing we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.